Good morning, everyone. So today we are going to do another example on a singly reinforced beam, but having different parameters which we have done before. Now in this, let's first read the question. Draw the longitudinal section, cross sections. ਹੁਣ cross sections ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, one at support and one at mid span. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਬਣਾਣੇ ਨੇ. Of a simply supported beam for a clear span of 6 meters from the following data. Beam ਦੀ dimension ਹੈ 300 into 500 mm. तो that means ਜੇ ਅਸੀਂ beam ਨੂੰ cross section ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, the beam has a width of 300 mm and overall depth of beam is 500 mm. Bearing on walls 200 mm. Walls ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ mm ਰੈਸਟ ਆ? 200 mm. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬੇਟਾ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਦੀ 200 mm ਆ, 200 mm ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦਈਏ. ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਲ ਸਾਡੀ 300 mm ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਅਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 mm ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ, ਰਾਈਟ. ਮੇਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ 7 bars 20 mm डाया in 2 tiers. ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰਸ ਬੋਲੋ, ਟੀਅਰਸ ਬੋਲੋ, one and the same thing. ਟੀਅਰਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਸ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 7 ਬਾਰਸ ਨੇ, ਸੋ 7 ਬਾਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਜਸਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਰਾਈਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਰਸ ਨੂੰ 2 ਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 2 ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਬਾਰਸ ਇਨ ਲੋਅਰ ਟੀਅਰ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰਸ ਨੇ? 4 ਬਾਰਸ. ਐਂਡ 3 ਬਾਰਸ ਇਨ ਅੱਪਰ ਟੀਅਰ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਰਸ. ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟਿਰਪ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਟਿਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੇਸਰ ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬਾਰਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਪੇਸਰ ਬਾਰਸ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੀਮ ਚੌੜਾ ਸਟਿਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ, ਆ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ, ਰਾਈਟ. ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਬਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪਰ ਬਾਰਸ ਆਰ ਬੈਂਟ ਅਪ ਐਟ L/7 ਫਰੋਮ ਦ ਸਪੋਰਟ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫਰੋਮ ਫੇਸ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ. ਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ IS ਕੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਬੈਂਟ ਅਪ ਬਾਰਸ ਪਾਣੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਸਪੋਰਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ L/7. ਨਾਓ ਸਪੇਸਰ ਬਾਰਸ 20 mm ਡਾਇਆ ਐਟ ਦ ਰੇਟ 1 ਮੀਟਰ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਸ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ. ਸੋ 1 ਮੀਟਰ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ. ਐਂਕਰ ਬਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ 2 ਬਾਰਸ ਆਫ 12 mm ਡਾਇਆ. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾ ਬੀਮ ਇਜ਼ ਸਿੰਗਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ, ਡਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ. ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ. ਦੂਸਰਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਿਰਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. 8 mm ਡਾਇਆ 2 ਲੈਗਡ ਸਟਿਰਪਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 250 mm ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 200 mm ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੀਮ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੀਮ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬੀਮ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਮੀਟਰ ਕਲੀਅਰ ਸਪੈਨ ਆ. ਬੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਵਾਲਸ ਕਿੰਨੀ ਆ? 200 mm ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਐਂਡ 200 mm ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ. ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਬੀਮ ਮੇਰਾ 6400 mm ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 6400 mm ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 mm 1 ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਰਾਈਟ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਿਰਪਸ ਪਾਣੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 200 mm ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਟਿਰਪਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ 1000 mm ਤੇ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ
ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਰਪਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ? 250 mm ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ। ਆਰਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਿਰਪਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ੀਅਰ ਫੋਰਸ ਚੱਕਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਸ਼ੀਅਰ ਫੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟਿਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਅਰ ਫੋਰਸ 0 ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟਿਰਪ ਸਿਰਫ ਬਾਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਲੋਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਡਰਾਇੰਗ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ 6 ਮੀਟਰ, ਬੀਅਰਿੰਗ 200 mm ਦੇਤੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਪੈਨ ਦੇਖ ਲਿਆ 6.4 ਮੀਟਰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਐਂਕਰ ਬਾਰਸ, ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਲੋਅਰ ਟੀਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਨ ਬਾਰਸ। ਸੋ ਲੋਅਰ ਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ? 420 mm ਡਾਇਆ ਮੇਨ ਬਾਰਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੋਂ 20 mm ਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਵਰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ 20 mm ਦਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਵਰ ਛੱਡਣਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਛੱਡਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਾਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੇਸਰ ਬਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੇਸਰ ਬਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੈਂਟ ਅਪ ਬਾਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ L/7 ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ L/7 ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਸ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਰਸ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਏ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਟ ਅਪ ਬਾਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ 1 mm ਦਾ ਡਾਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ 1 mm ਮੋਟੀ ਬਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਬੈਂਟ ਅਪ ਬਾਰ ਤੇ ਮੇਨ ਬਾਰ, ਲੋਅਰ ਟੀਅਰ ਐਂਡ ਅਪਰ ਟੀਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸਰ ਬਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਆ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤੀ 1 mm। ਵੈਸੇ 1 mm ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ 20 mm ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20 mm ਦੀ ਬਾਰ ਆ ਸਪੇਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਟ ਅਪ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਬਾਰਸ ਬੈਂਟ ਅਪ ਬਾਰਸ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਪੇਸਰ ਬਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਟਿਰਪਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟਿਰਪ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਪੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟਿਰਪ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੀਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਬੀਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 200 mm ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ, ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ 1 ਮੀਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਟੋਟਲ 6.4 ਸੀ। 6.4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੀਟਰਸ ਕੱਢ ਦੋ, ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ 4.4 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ 4.4 ਮੀਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਨਸ, ਗੋਲਡਨ ਇੱਥੇ ਡਾਟਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਅਰ ਟੀਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸਪੇਸਰ ਬਾਰ 1 mm ਦੀ ਜਾਂ 20 mm ਡਾਇਆ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬੈਂਟ ਅਪ ਬਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਟ ਅਪ ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ XX ਤੇ ਦੇਖੋ, XX ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਮਨੀ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਹੋਈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ। ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ 2 ਬਾਰਸ ਐਂਕਰ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟ ਲੈਫਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬਾਰਸ ਥੱਲੇ ਦਿਖੀਆਂ। ਬੈਂਟ ਅਪ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ 3 ਸ਼ੋ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਉੱਪਰ ਐਂਕਰ ਬਾਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ।
सो इत्थे उपर 5 हो गई, इत्थे साडे कोलों थल्ले 7 हो गई, राइट। सो ये क्रॉस सैक्शनस वगैरह बनाने आई थिंक तुहानूं कोई डिफिकल्टी ये आऊगी नहीं। इनू तुसी पहला कॉपी के उत्ते प्रॉपर ड्रॉ करो, स्केल के उत्ते करो, तां जो तुहानूं स्पेसिंग चंगे तरीके दे नाल पता लग जाए किवें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है स्टिरप्स दे विच। नाउ मूविंग ऑन टू बार बेंडिंग शेड्यूल। सो हुण बार बेंडिंग शेड्यूल दे विच सब तो पहला असी टेबल बना लीए, कॉपी के उत्ते टेबल बना लो। सो बेटा सब तो पहला तुहाडा बार बेंडिंग शेड्यूल दे विच आ गया सीरियल नंबर, दैन टाइप ऑफ बार। सो आई एम कंसिडरिंग हियर नंबर 1 टाइप ऑफ बार है मेरे को मेन बार्स। मेन बार्स मेरे को दो तरीके दियां, सब तो पहली होगी स्ट्रेट, और नाल ही मैं इत्थे स्ट्रेट दे विच लिख दूंगा लोअर टीयर वालियां जिहड़ियां बार्स ने, और दूसरे तरीके की बार्स हो गई बेंट अप, जिन्होंने असीं कहने अपर टीयर वालियां बार्स। नैक्सट दूसरे तरीके की अपने को बार्स किहड़ियां ने एंकर बार्स। मैं पहला इधर वाला पासा सारा कंप्लीट कर दूँ। सो थर्ड अपने को इत्थे विच आ गई एक होर तरीके की बार, दैट इज स्पेसर बार, और फोर्थ टाइप इज स्टिरप्स। सो इन्हां सारियां दे डायामीटर्स देखो, मेन बार्स जिहड़ियां लोअर टीयर दे विच सारियां 20 mm डाया दिता, एंकर बार्स 12 mm डाया है, स्पेसर बार 20 mm डाया एंड स्टिरप्स 8 mm डाया। अगर किसी को नहीं समझ लगता सो लेट्स सी थ्रू अ क्वेश्चन। आ देखो मेन बार्स जिहड़ियां सीगियां, मेन रीइंफोर्समेंट 7 20 mm डाया, 4 थल्ले ते 3 उपर, ठीक है जी। डायामीटर मेन बार्स का 20 mm है। एंकर बार्स 2 12 mm डाया बार्स, 12 mm डाया लिखता, स्पेसर बार्स 20 mm डायामीटर एंड स्टिरप्स किनिया 8 mm डाया। नाउ शेप स्ट्रेट बार, बेंट अप बार, एंकर बार विल आल्सो बी ए स्ट्रेट बार। हुण स्पेसर बार नूं तुसीं इत्थे छोटी जी बार बनाना, क्योंकि इहदी लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है, इस करके सानूं इत्थे सिंबल भी जिहड़ा उहदा उस तरीके का पाना पैना, और इहदे हिसाब दे नाल आपां की प्रोवाइड कर देवांगे स्टिरप हुक इत्थे प्रोवाइड कर दो। नाउ मेन बार्स किनियां ने 4 बार्स ने, बेंट अप बार 3, एंकर बार्स 2, स्पेसर बार ते स्टिरप्स ये आपां कैलकुलेट करांगे किनियां किनियां चाहिए। हुण असीं स्टार्टिंग करिए क्वेश्चन तो। सो सब तो पहला आ गया साडे कोल मेन बार्स। जिहड़ियां लोअर टीयर वालियां ने। सो आ देखो बेटा, सब तो पहला मेन बार असीं इस ढंग दे नाल पाई सी। लैफ्ट साइड तो किन्ने mm 20 mm का कवर, और राइट साइड तो भी किन्ने mm का कवर 20 mm का। टोटल बीम मेरा कितना चौड़ा सी 6400 mm, 6.4 मीटर, राइट। क्यों? क्योंकि ये 200 mm की की सी बीयरिंग इधर, 200 mm की बीयरिंग इधर। सो अंदरों अंदर किन्ने मीटर स्पैन सी 6000 mm, 6 मीटर, राइट। सो आसे पासों 200 mm करके असी बीम की टोटल लेंथ कट ली, दैट इज 6400 mm। सो लेंथ ऑफ मेन स्ट्रेट बार, सो ये अपने को आ गई 6400 टोटल है। 20 mm फ्रॉम लेफ्ट साइड का कवर, 20 mm फ्रॉम राइट साइड का एंड कवर, और ये अपने को बन गया 6360 mm। और इनू जो असी मीटर्स दे विच कन्वर्ट करांगे इट इज 6.36 मीटर्स, राइट। सो मैं इत्थे लिख दूँ 6.36, और नंबर ऑफ बार्स ने 4, सो इट इज 25.44। बेटा कैलकुलेशंस नाल दी नाल चेक कर लियो, समटाइम्स कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। सो वेट पर मीटर का मैं तुहानू फॉर्मूला दसिया सी, एट साइट इट इज यूज्ड d² डिवाइडेड बाय 162.8
2 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ 20 mm ਦੀ ਬਾਰ ਆ ਸੋ 20 ਸਕੁਅਰ डिवाइडेड बाय 162.2 और ये अपने को आ गया 2.47 kg पर मीटर सो इट इज 2.47 सो मेरे को टोटल वेट कितना हो गया इन्होंने दोवां नूं मल्टीप्लाई करके इट बिकम्स 62.84 दोबारा तो इन्होंने दोवां नूं मल्टीप्लाई करके नंबर्स से लेंथ नूं मल्टीप्लाई करके मेरी टोटल लेंथ आ गई टोटल लेंथ ते वेट पर मीटर नूं कैलकुलेट करके मेरे को लेंथ आ गई टोटल मेरे को सॉरी टोटल लेंथ नूं असीं वेट नाल मल्टीप्लाई करके साडे कोल आ गया टोटल वेट नाउ मूविंग ऑन टू बेंट अप बार सो लेंथ ऑफ बेंट अप बार ये आपां लास्ट टाइम पढ़िया सी लेंथ ऑफ straight bar plus 2 into 0.42h 6360 मेरी ये straight bar दी लेंथ है 2 into 0.42 into now moving on to h what is h सो बेटा सब तो पहला असीं की करांगे आ बार्स वाली ऊपर वाली बार थोड़ी जी मैं थिकनेस शो कर देना ऊपर वाली दी थिकनेस थले वाली बार की थिकनेस उस तो बाद आ मेरे को होगी मेरी स्टिरअप सो स्टिरअप्स बन गई उस तो बाद की सी एंकर बार के उपर असी स्पेसर बार्स पाइया हुई स्पेसर बार के उपर मेरी बेंट अप बार हुण मैं जी बेंट अप बार बनाने लगा ध्यान नाल देखियो आ मेरी बेंट अप बार ऊपर जाके एंकर बार दे नाल मिल जाती है आ थले मेरी बेंट अप बार है एंकर बार स्पेसर बार दे बिल्कुल ऊपर ऊपर चल रही है सो असी एच किया सी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ बेंट अप बार दा जेड़े ऊपर थले वाले लैवल्स आ मतलब एक लैवल आ ये सेंटर तो लैके बेंट अप बार दा आ सेंटर आ ये सेंटर तक राइट सो ओवरऑल मेरे को मेरा बीम की डेप्थ है 500 mm सो असी पहला हुण एच कैलकुलेट कर लीए तुसी लास्ट टाइम भी सीखिया ही होना जिवें कीता सी मैं उवें ही करूँगा एच इज इक्वल्स टू टोटल है 500 mm बीम सब तो पहला 20 mm का मैं क्लीयर कवर माइनस करता सी मीनस क्लीयर कवर आ वाला इन्ना छोटा जहा हर एक स्टिरअप के थले है जोड़ा ठीक है 20 mm का क्लीयर कवर माइनस फिर आ स्टिरअप की थिकनेस थल्यों भी तो उपरों भी 8 mm माइनस डिस्टेंस देखो तो कितों चाहिए इतों चाहिए सो तुसी सब तो पहला क्लीयर कवर माइनस किया इन्ना फिर स्टिरअप की थिकनेस माइनस की हुण थल्यों की माइनस करना एक मेन बार ग्रीन कलर वाली जी इस टाइम 20 mm डाया फिर स्पेसर बार रेड कलर दी ओदा भी 20 mm डाया फिर 20 का हाफ दैट इज इस ब्लैक कलर वाली बेंट अप बार का सेंटर हाफ हो जाऊगा ये आप सारा थल्यों माइनस कर लिया हुण उपरों देखो उपरों असी क्लीयर कवर माइनस कर चुके हैं उपरों बेंट स्टिरअप माइनस कर चुके हैं रह की गई बेंट अप बार का हाफ सो इस सॉल्व करोगे एच थोड़े को आ जाएगा बेटा 384 mm सो 384 नूं इत्थे माइनस करो सॉरी भर दो 384 mm सो इहदी लेंथ थोड़े को आ गई 6.682 या फिर थोड़े को पहला 6.682 mm तो इनू 6.682 की कर लिया मीटर्स सो हुण इनू असीं बार बेंडिंग शेड्यूल च भरीए 6.68 राइट हुण इन्हों मल्टीप्लाई करके आ गया अपने को 20.04 सो वेट इज सेम क्योंकि 20 mm की बार है और ये करके आ गया 49.50 नैक्सट इज एंकर बार्स अपने को दो ने एंकर बार्स की लेंथ कितनी होंगी है बेटा जिन्नी स्ट्रेट बार की होंगी है मतलब 6.36 ये थोड़े को आ गया 12.72 डायामीटर छोटा इस करके वेट पर मीटर घट होएगा 0.89
और टोटल वेट है 11.32। दोबारा तो दस देवां, इन्हां दोवां नूं मल्टीप्लाई करके आ वाली चीज़, फिर इन्हां दोवां नूं मल्टीप्लाई करके आह वाली चीज़। उस तो बाद आ गया अपने को बेटा स्पेसर बार्स। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेसर बार्स। नंबर ऑफ स्पेसर बार्स, जिमें असी स्टिरप्स की बेटा लेंथ कढ़ते हैं, जिमें नंबर ऑफ स्टिरप्स कढ़ते हैं उवें ही स्पेसर बार असी कढ़ांगे। ठीक है जी। हुण जिमें देखो साडे कोलों स्पेसर बार दे लई स्पेसिंग कितनी दित्ती हुई है 1 मीटर सेंटर टू सेंटर, मतलब 1000 mm सेंटर टू सेंटर। सब तो पहला असी देखिए कितनी लेंथ दे लई साडी स्पेसर बार पै रही है। इन्नी लेंथ लई पै रही है, आह इत्थों लैके इत्थे तक, राइट। हुण इहनूं असीं पहलां देखिए कितनी लेंथ बन रही है। देखो टोटल इफेक्टिव स्पैन देखो, सब तो पहला 6.2 मीटर्स है। ठीक है जी। हुण इत्थों L/7 दे उत्ते तुहाडी बेंट अप हुई आ, राइट। हुण आपां कैलकुलेट करिए जरा। मेरे कोलों इफेक्टिव स्पैन है बेटा जी 6200, राइट। हुण 6200 दे विचों माइनस करना L/7, L/7 पहला कर लो, 6200 डिवाइडेड बाय 7, और ये थोड़ी रफ कैलकुलेशन आ रही है। लेट मी कैलकुलेट दिस। 6200 डिवाइडेड बाय 7 इट बिकम्स 885.7। असी इहनूं 886 mm मान लेंगे, राइट। मेरे कोलों हुण इहदे सेंटर तो बीम दे इफेक्टिव स्पैन दे 886 में लैफ्ट तो माइनस करता, तो 886 में राइट साइड तो माइनस करता, राइट। ध्यान नाल देखो दोबारा तो, सेंटर टू सेंटर ऑफ बीयरिंग जेड़ा इफेक्टिव स्पैन हुंदा, इफेक्टिव स्पैन दे विचों इन्ना बेंट अप बार दा मैं हिस्सा माइनस करता, इन्नी लेंथ, ते इधरों भी इन्नी करती, ते बाकी जिहड़ी बच गई मेरे कोलों बेंट अप बार दी सीधी वाली लेंथ बच गई जिहड़ी स्ट्रेट है, राइट। हुण देखो जरा स्ट्रेट कितनी रहिंदी है 6200 माइनस 886 माइनस 886, ये बन गया 4428 mm। सो स्पेसर बार दी असी लेंथ किवें कड्डांगे, पहला लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग दित्ती है 1000 mm, सो ये आ गया 4.428। सो नंबर ऑफ स्पेसर बार्स इज 5। सो अपने को जिहड़ियां स्पेसर बार्स रिक्वायर्ड कितनियां हो गई 5। हुण असीं ये 5 स्पेसर बार्स नूं प्रोवाइड कर देवांगे। हुण 5 जिहड़ियां स्पेसर बार्स ने, इहदे विच एक चीज़ साडे कोलों स्टिरप वाले लॉजिक दे नाल असीं लगावांगे बेटा। जदों असीं स्टिरप दी नंबर ऑफ स्टिरप्स कढदे सी, उहदे विच की करदे सी, यही सारी स्पेसिंग करके +1। सो इत्थे भी अपने को की होगा +1। सो नंबर ऑफ स्पेसर बार्स कितनियां रिक्वायर्ड हो गई 6। डायग्राम दे विच इत्थे 5 बनी है, तुसीं उस अकॉर्डिंगली 6 नूं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लियो। दोबारा तो मैं रीजन दस देवां क्यों 6 लईआं, +1 क्यों कीता। जस्ट लाइक अपना हाथ स्पेसिंग जे अगर 4 ने तो फिंगर्स कितनियां होया 5। उस तरीके ना जे स्पेसिंग अपने कोलों जे स्पेसिंग एक घट, अगर अपने को जिन्नी भी स्पेसिंग आ बेटा वो एक प्लस होके ही नंबर ऑफ बार्स या नंबर ऑफ स्टिरप्स या नंबर ऑफ फिंगर्स कुछ भी चीज़ है जी उस तो एक वध गई होगी, राइट। सो ये अपने को हो गई नंबर ऑफ स्पेसर बार्स। सो स्पेसर बार्स की असी इतने वैल्यू पुट कर दी नंबर 6। नाउ स्पेसर बार की लेंथ कितनी चाहिए होगी, ये सानू पता लगूगा क्रॉस सैक्शन तो। So this is our stirrup, hook of stirrup, 1 2 3 4 bars in lower tier, right। हुण ऊपर वाले टीयर दे विच कितनियां 3 बार्स ने। नाउ आई एम मार्किंग विद ग्रीन पेन स्पेसर बार। स्पेसर बार बेटा बस इन्नी होगी, आ इन्नी। सो जी मैं डार्क की दिस इज स्पेसर बार।
राइट। हुण इहदी लेंथ देखो, मतलब ये अंदरों अंदर होगी। टोटल अपने कोलों कितना 300 mm। सो स्पेसर बार की लेंथ कड्डो 300 mm माइनस दोवां पासों 20 mm का क्लीयर कवर माइनस 8 mm की स्टिरअप लैफ्ट साइड तो माइनस करांगे 8 mm की राइट साइड तो। सो इट बिकम्स 300 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 8 इट इज 244 mm। सो मेरी स्टिरअप की लेंथ कितनी होएगी बेटा 244। सो 0.24 6 इंटू 0.24 ये अपने को आ गया 1.44 मीटर की लेंथ चाहिए है। वेट कितना होएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162.2। सो अपने को आ गया 1.44 इंटू 2.47। इस सॉल्व करके अपने को आ गया 3.56 इन्ने केजीज आ गया राइट। और लास्ट आ गई अपने को स्टिरअप, जो आप लास्ट टाइम किया सी स्टिरअप जिमें कैलकुलेट करनी सी उहदे वांगू ही सेम करांगे क्रॉस सैक्शन तो। राइट। इस स्टिरअप अपन अंदरों अंदर डिस्टेंस चाहिए। दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज बी। सो पहला आप ए डिस्टेंस लभीए। टोटल मेरे को कितना बीम आ 300 का 300 माइनस 20 mm का क्लीयर कवर लैफ्ट तो 20 mm का क्लीयर कवर राइट तो 8 mm की स्टिरअप लैफ्ट एंड 8 mm की स्टिरअप राइट। इट बिकम्स 244 mm। सो बी डिस्टेंस इज ओवरऑल डिस्टेंस है 500 बीम दे बिल्कुल टॉप तो बॉटम तक का डिस्टेंस। सो सेम 20 mm का क्लीयर कवर टॉप तो 20 mm का क्लीयर कवर बॉटम तो दिस बोथ माइनस 8 mm के टॉप तो 8 mm का बॉटम तो ये अपने को आ गया इट इज 444। राइट। सो मेरे को कितनी लेंथ होगी मेरी स्टिरअप की लेंथ ऑफ स्टिरअप ओवरऑल अपने को कितना होगा पहला था दो लेंथ वर्टिकल 2444 प्लस दो हॉरिजॉन्टल 244 प्लस 16 इंटू डायामीटर ऑफ स्टिरअप 16 डाया कादे लई हुक्स दे लई 8 डाया एक हुक ली आह 8 डाया। सो 8 डाया ही दूसरी हुक दे लई। सो ये आ गया 2 इंटू 444 प्लस 2 इंटू 244 प्लस 16 इंटू 8 ये अपने को आ गया 1504 राइट mm। सो ये आ गया अपने को 1.50 राइट। सो नंबर ऑफ स्टिरअप्स किमें कैलकुलेट करनी सी सेम इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। सो अपने को इफेक्टिव लेंथ आप कट के रखी है 6200 डिवाइडेड बाय हुण जिहड़ी स्टिरअप सी स्पेसिंग आ बेटा इत्थे डिफरेंट आ इहदे लई हुण असीं की करांगे 6200 इत्थे असीं नहीं ले सकते वी हैव टू नोट दिस। बिल्कुल देखो लैफ्ट तो 1 मीटर छड्डिया बिल्कुल राइट तो 1 मीटर छड्डिया विच वाले पासे तुहाडा बच रहा 4400 mm या 4.4 मीटर राइट। जे मैं टोटल स्पैन की गल करा मैं शीट लेनी पैनी हुणे देखो ये बिल्कुल बीम एंड तो एंड बीम आ बेटा 1 मीटर इधरों 1 मीटर इधरों राइट। पर असी जी सब तो पहली स्टिरअप पाने वो कभी भी बीम के एंड तो नहीं पाते असी पहली स्टिरअप हमेशा बेटा इत्थे पाने सेंटर ते इत्थे भी सेंटर ते
राइट। हुण तुसीं की करना, तुसीं इत्थों डिस्टेंस लो, आ कितना हो गया डिस्टेंस, ये अपने को है 0.1। किवें 0.1, बीयरिंग कितनी आ 0.2 दी, तो 0.1 ਉਹਦਾ हाफ हो गया। 1 मीटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.1 माइनस कर दो, कितना बच गया 0.9। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟਿਰਪ ਪਾਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 0.9 मीटर्स। उधर बीयरिंग का हाफ माइनस करता। सो आ मेरे को डिस्टेंस हो गया। हुण आपां की करना, नंबर ऑफ स्टिरप्स कढ़िए जी। 1 मीटर के पोर्शन दे विच लेंथ कितनी आ 900 mm, आह 0.9 मीटर आ जिहड़ा, उहनूं मैं mm च लिख लिया। स्पेसिंग कितनी आ मेरी 200 mm। जिहड़ी एक क्वेश्चन देखो एक बारी दोबारा तो, लेट मी शो यू क्वेश्चन। आ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, 1 मीटर पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ स्पेसिंग 200 mm। सो डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1, सो 900 डिवाइडेड बाय 200 कितना आ गया 4.5 प्लस 1। हुण तुसीं की करना, पहला 4.5 नूं राउंड करो 5 दे विच, प्लस 1 कितना हो गया 6। हुण 6 लैफ्ट तो 6 राइट तो, हुण विच वाला पोर्शन देख लो कितना बच गया। टोटल इफेक्टिव स्पैन सी 60 to 100 माइनस 0.9 लैफ्ट तो 0.9 राइट तो, मतलब 900 mm लैफ्ट तो 900 mm राइट तो, विच वाला पोर्शन बच गया 4400 mm। सो नंबर ऑफ स्टिरप्स मिडल पोर्शन दे विच इट इज 4400 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग उत्थे दी कितनी है 250, 250 डिवाइडेड बाय 250, इट इज 17.6 प्लस 1। सो असी 17.6 नूं राउंड ऑफ करता, 18 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 19। नाउ हुण इस चीज़ का ख्याल करो, असी इत्थे बार्स जिन्नियां पाइयां ਉਹਦੇ 'ਚ एक ऐड करता, इत्थे जिन्नियां पाइयां बार्स मीनस स्टिरप्स उत्थे एक ऐड करता, सेंटर दे विच जिन्नियां भी पाइयां ਉਹਦੇ 'ਚ एक ऐड करता। राइट, असी एक ऐड लैफ्ट तो, एक ऐड राइट तो, एक ऐड सेंटर तो करता। पर कभी भी ओपन फिगर दे विच इदां तां हुंदा नहीं, जे स्पेसिंग डिफरेंस होवे तां 3 ऐड होणगियां। राइट, हुण जे एग्जाम्पल के तौर ते जे असी अपने हत्थ की ही एग्जाम्पल लै लीए, कह लो जी इन्हां दो दे विच फर्क थोड़ा जिहा ज़्यादा, बाकी सारियां दे विच घट आ, पर ओवरऑल जे असी इदां भी मन के चलीए कि थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग आ, किसी च स्पेसिंग ज़्यादा आ, 1 2 3 4 स्पेसिंग्स तो 4 ही रहणगियां ते नंबर ऑफ बार्स भी की होणगियां, इक्को ही प्लस होगी। राइट, सो असी सारियां दे विच एक एक नहीं प्लस करना। इत्थे कितनी आई 5, इत्थे कितनी आई 18। हुण ध्यान नाल देखो, लैफ्ट साइड उत्ते 5, राइट साइड उत्ते 5 विच 18, ओवरऑल सारियां विच कितना प्लस करना सी 1। सो असी वो 18 दे विच प्लस करांगे 19। सो अपने को टोटल स्टिरप्स कितनियां हो गईयां 5 प्लस 19 प्लस 5, सो नंबर ऑफ स्टिरप्स इज 29 स्टिरप्स। सो 29 आप इत्थे लिख देवांगे 29 स्टिरप्स। रिमेंबर इन्हां सारियां उत्ते mm दे विच वैल्यूज लिखनियां तुसी, ठीक है। टोटल लेंथ अपने को आ गई 29 इंटू 1.5, इट कम्स 43.5। सो वेट इज 0.39, टोटल वेट इज 16.96। सो इन्हां सारियां नूं प्लस करके आप कैलकुलेट कर लवांगे टोटल वेट। सो टोटल वेट है अपने को 62.84 प्लस 49.5 प्लस 11.32 3.56 16.96, इट इज़ 144.18। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5% वेस्टेज, सो मल्टीप्लाई इट बाय 0.05, इट इज़ 7.20। सो उस तो बाद साडा निकल जाएगा ग्रॉस वेट, और ये आ गया 144.18 प्लस 7.2 151.38 kg। सो टोटल साडे कोल जिहड़ा वेट होएगा 151.38 kg होएगा। सो रिमार्क्स नूं असीं इस फॉर्म दे विच इधर वाले पासे करके लिखांगे। की लिखना उत्थे, सब तो पहला रिमार्क्स HYSD bars are used, second
clear cover and end covers किन्ने ने 20 mm. Third, hooks are wrapped around main bars for a length of 16 dia, that means 8 dia plus 8 dia. So this is in remarks. So this is your whole question. एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਡਰਾਇੰਗ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਾਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ठीक है बेटा, जे कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन कॉल और सेंड मी मैसेज। ओके, थैंक यू।